Hello students, a very welcome to all of you. Now, last time we have completed with trigonometry 1 and today we are going to start with a new topic that is nothing but trigonometry 2. It is the third topic in paper 1. Write down third topic trigonometry 2. It is also known as trigonometric functions of compound angles. Now, why this is called as trigonometric functions of compound angles and what exactly compound angles are? So let us first understand the meaning of compound angle. Trigonometric functions क्या होते हैं? We have defined in the previous topic. Now, compound angles क्या होते हैं? Let us see the meaning of this and then we'll move ahead. Okay? So please write down meaning of compound angle. An angle formed by the algebraic sum or difference. Underline this word. Okay? An angle formed by the algebraic sum or difference of two or more angles is called as a compound angle. Say for example, means what? Suppose if capital A and capital B are two angles. So write down. That is, if you observe, if I write down A plus B, or else if I write down A minus B, where A and B are two different angles. So A plus B or A minus B written, they are called as nothing but the compound angles. That is what the meaning says. An angle formed by the algebraic sum. Sum means plus, or difference. Difference means minus, of two or more angles is called as an compound angle. तो ऐसा फॉर्म है A plus B या A minus B, or else it can be other notation also, C plus D, C minus D. Such angles are called as compound angles. Now, then why do we call it as trigonometric functions of compound angles? Because on these compound angles, we are going to apply trigonometric functions, and that is the reason why they are called as trigonometric functions of compound angles. ये complete meaning है. Now, we have to remember the list of formulas over here. But before that, you write down this. I'll give you a list of formulas also, but उसके पहले आप ये लिख लीजिए notebook में आपके. So now, after seeing the meaning of compound angle, let us write down the formulas. तो ऐसा लिखो हेडिंग में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज, इसका नाम ऐसा दे दो आप. फर्स्ट वन यू राइट डाउन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले. फॉर्मूले मीन्स देर आर मोर देन वन. जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, तो फॉर्मूले मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज है. ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले. तो राइट डाउन द फर्स्ट फॉर्मूला अंडर दिस. राइट डाउन साइन ऑफ A plus B equal to, राइट डाउन साइन A cos B plus cos A sin B. Now, as you can observe, A plus B is a compound angle and trigonometric function is applied on the compound angle. That is why it is called as trigonometric functions of compound angles. But इसको अभी जो नाम दिया है वो trigonometry 2 आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नाम दिया है. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. राइट डाउन सेकंड फॉर्मूला साइन ऑफ A minus B. So sin of A minus B का फॉर्मूला you write down. It is sin A cos B minus cos A sin B. Don't worry, I'll tell you how to remember the formula also. Third formula लिखो cos of A plus B. तो cos of A plus B का फॉर्मूला है cos A cos B minus sin A sin B.
Next, fourth one, you write down the formula for cos of a minus b. तो cos of a minus b का क्या formula है? So it is nothing but cos a cos b plus sin a sin b. Next, fifth one लिखिए आप, tan of a plus b. Now they are called as addition and subtraction formulas. Addition means plus, subtraction means minus. उसके लिए लिख रहे हैं हम. तो tan of a plus b का formula लिखो. So that is nothing but tan a plus tan b upon, in the denominator we will have 1 minus tan a into tan b. And the sixth one and the last one under addition and subtraction formula is nothing but the formula for tan of a minus b. So tan of a minus b का formula है tan a minus tan b upon, in the denominator we will have 1 plus tan a into tan b. Okay, chalo write down till here, then I'll explain how to remember that. Okay, now students, how we have to remember the formula. Sin of a plus b का क्या formula है? Sin a cos b plus cos a sin b. If there is a sin function and if there is plus sign on the left hand side, there will be plus sign on the right hand side. Sin of a minus b का formula. The sin function है and if there is a minus sign on the left hand side, there will be minus sign on the right hand side. वैसे दोनों फॉर्मूले सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है. So this is how you remember. Now see cos function का, cos of a plus b, अगर cos function है और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है तो राइट हैंड साइड पे माइनस आता है. Cos of a plus b, see how it is read as cos of a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. यहाँ पे देखो cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. तो अगर cos फंक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस साइन है तो राइट हैंड साइड में प्लस साइन आएगा. ये cos फंक्शन का वर्किंग है. दिस इज हाउ यू रिमेम्बर. अब देखो tan का फॉर्मूला, tan of a plus b. See, it is important how we are reading. It is read as tan of a plus b. मतलब tan फंक्शन a plus b के ऊपर अप्लाई किया है. तो tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. अब देखो इसको कैसे याद रखना है. If it is plus on the left hand side, न्यूमरेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा. सिक्स्थ वन, tan of a minus b, it is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b होता है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है tan फंक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा. If there is a minus sign on the left hand side, then minus sign will be in the numerator and plus sign will be in the denominator. That is the difference between them. So total 6 formulas, students, and all these 6 formulas, they are known as addition and subtraction formulas. ये heading आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए. When I say addition and subtraction formulas, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, अच्छा हाँ, sin of a plus b, sin of a minus b. ये जो प्लस माइनस फॉर्मूलेज है, दे आर कॉल्ड एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज. तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा. ओके, चलो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस. इफ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. So now before we move ahead to the next part of the topic, और एक पॉइंट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है. So I'll just write down that as a note over here. So please write down. It's an important point to be noted. So ऐसा लिख लो note. Now in the note you write down that sin of a plus b is not equal to sin a plus
साइन बी, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, राइट डाउन। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ऐसा एक स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होता है कि अच्छा साइन फंक्शन स्प्लिट कर देते हैं, तो साइन फंक्शन स्प्लिट नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी का? इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जैसे फॉर्मूलेज है ऐसे ही आपको याद रखना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कैन नॉट बी रिटर्न एज साइन ए प्लस साइन बी। ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि फंक्शन आपने स्प्लिट कर दिया वो इक्वल हो जाएंगे, नो, दे आर नॉट इक्वल। वेदर इट इज अ साइन फंक्शन, वेदर इट इज अ कॉस फंक्शन, वेदर इट इज अ tan फंक्शन, ये ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो कुछ है यही पॉसिबल है, एंड दीज आर द फॉर्मुलेज दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, so just note down this, then we'll move on to the next formula. So now students, let us move on to next, that is nothing but allied angle. Now what exactly are allied angles? So please note down allied angles का definition लिखो. If the sum or difference of measure of two angles is either 0 or integral multiple of 90 degree, such angles are called as allied angles. I repeat, if the sum or difference of the measures of two angles is either 0 or integral multiple of 90 degree. Integral multiple of 90 degree. Integral multiple means 1 time of 90 degree, 2 times of 90 degree, 3 times of 90 degree. ऐसा. Integral multiple of 90 degree. Such angles are called as allied angle. Now, second set of formulas is trigonometric functions of allied angles के formulas है. Now, I am going to teach you a interesting and a very simple trick to remember the formulas. So chalo, write down. First of all, you note down this definition of allied angles. ठीक है, उसके बाद आप heading लिखो. Now we are going to write down the second list of formulae. First list of formula मैंने आपको already दे दिया. Now second list of formula write down trigonometric functions of trigonometric functions of allied angles. ऐसा हेडिंग आप दे दो, ठीक है. Now, if you observe, textbook has used a tabular form to explain this trigonometric functions of allied angles, but उससे easy trick मैं आपको सिखाऊंगा by using the quadrant system. So in trigonometry 1, we have already learned about the quadrant system and which function is positive and negative in which quadrants. That with that basic knowledge, we are going to move ahead. So please pay attention very carefully when I am explaining. So chalo, everyone put this heading. Second set of formulas is trigonometric functions of compound angles. Now, without these concepts, we cannot move ahead to the exercise. So I am going in a proper order. So first of all, what you do, students, draw a coordinate system. तो चलिए draw कीजिए आप. थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कीजिए आप. जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ बिगर वन. एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, so this is x axis, x o x dash, and this is y axis. I name this as y o y dash. Now as we all know students, this is our first quadrant. अच्छा चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. We know that this is nothing but 0 degree angle. यहाँ से स्टार्ट होता है. Initial arm is always along the positive direction of x axis. 0 degree. Okay, this is nothing but 90 degree. चलो I'll write down over here. ये है, यहाँ पर होगा 90 degree angle. Here it will complete 180 degree angle. Here it will be
270 degree angle. Okay, here one rotation when it gets completed, जब एक पूरा rotation complete हो जाएगा, this will measure nothing but 360 degrees. And angle तो ऐसे continue होते ही रहता है, rotation goes on and on. Anti-clockwise angle is positive, clockwise angle is said to be negative. So first of all draw this everyone. Now whenever the angle is between 0 degree and 90 degree, so that angle is said to lie in first quadrant. तो ये हमारा first quadrant है, this is our second quadrant, this is our third quadrant, 180 to 270, and between 270 to 360 it is nothing but our fourth quadrant. Now what happens is in the first quadrant all the functions are positive, means trigonometric functions. ठीक है ना, तो हम ऐसे भी याद रखते हैं, all school to college. Write down, just write down these capital letters A, S, T, C. Write down this. A stands for all the trigonometric functions are positive in the first quadrant. S stands for, चलो लिख देता हूँ, only sin theta and cosec theta are positive. Second quadrant में only sin theta and cosec theta are positive. Rest all are negative. Rest all negative. ये आपको previous topic में भी लिख के दिया है. Rest all negative. In the third quadrant, क्या होता है third quadrant में? Write down only T for tan. Only tan theta and cot theta are positive. Rest all are negative. And fourth quadrant में T stands for cos theta and its reciprocal sec theta are positive. Only I'll write down. Only cos theta and sec theta are positive. Rest all are negative. Okay, चलो note down this also. देखो पूरा detail explanation दे रहा हूँ मैं. All trigonometric functions are positive over here. तो इधर ऐसा लिख देता हूँ all trigonometric functions short form में लिख दिया are positive in the first quadrant. Second quadrant में ये, third quadrant में ये और fourth quadrant में ये. Now what happens is, see this position is nothing but 90 degree. अभी 90 degree को I can write down in form of radians. चलो ये जो y axis यहाँ पे लिखा है ना, उसको मैं यहाँ पे shift कर देता हूँ. This is y written over here. Now 90 degree can be also written as pi by 2 radians. So see 90 degree, or else it can be also written as pi by 2 radians. This is known to us. We have done it in the earlier topic also. 180 degree means it is nothing but pi radians. 270 degree means it is nothing but 3 pi by 2 radians होता है, and 360 degrees means it is nothing but 2 pi radian होता है. So angle can be written in form of degrees also, and it can be written in form of radians also. This knowledge is already there with us. Now what happens is, देखो angle जब anti-clockwise move होगा, है ना, so it will move this way. Now see this is pi by 2 position. Suppose यहाँ से 0 से 90 degree तक आ गया, तो this is pi by 2 position. Now if I add something to pi by 2, मतलब अगर 90 degrees को मैंने कुछ add किया तो वो आगे बढ़ेगा. So suppose if I do 90 degrees plus 10 degrees, so the angle will go ahead. If I do 90 degrees minus 10 degrees, so it will come back. So plus किया तो आगे जाएगा, minus किया तो पीछे आएगा angle. So now what you do, you show these arrows. I'll do it. ऐसा दिखाओ आप, arrow backways. ठीक है, थोड़ा मैं जरा डार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे आप लिखो this is pi by 2 minus theta. ऐसा लिखो आप. ये pi by 2 का पोजीशन है, y एक्सिस. दिस इज pi by 2 पोजीशन. अगर pi by 2 में से कुछ माइनस किया तो एंगल पीछे आएगा,
and I show arrow in forward direction also, in anti-clockwise direction also. ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, दिस इज नथिंग बट π/2 प्लस थीटा. राइट डाउन. तो ऐसा समझो आप. देखो वापस एक बार बताता हूँ. ये π/2 वाला पोजीशन है, दिस. तो π/2 माइनस थीटा and this is π/2 plus theta. Means you need to understand कि when it is π/2 minus theta, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. When it is π/2 plus theta, it is सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जो फंक्शन है उसका साइन भी चेंज होता है. तो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस और यू कैन ड्रॉ दिस. नाउ सी दिस इज पोजीशन ऑफ पाई. ये पाई वाला पोजीशन है. ठीक है, नाउ इफ आई मूव अहेड एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसा घुमाऊंगा तो देखो पहले आपको समझा देता हूँ. ये पाई वाला पोजीशन है. इफ आई डू पाई प्लस थीटा तो आगे जाएगा. इफ आई डू पाई माइनस थीटा पीछे आएगा. ठीक है, तो यू जस्ट शो अ एरो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसा दिखाओ आप एंड राइट डाउन ओवर हियर दिस इज पाई प्लस थीटा. पाई मीन्स 180 degrees and show the backward arrow also. ऐसा भी arrow बताओ आप. And over here we write down this is pi minus theta. So try to understand the position of the angles. तो अगर pi minus theta है तो it is second quadrant. Pi plus theta है तो it is nothing but the third quadrant. देखो वापस एक बार यहाँ से बता देता हूँ मैं. So this is pi वाला position. ये हमारा पाई वाला पोजीशन है. ये पाई माइनस थीटा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया. पाई प्लस थीटा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया. ओके, नाउ सी द पोजीशन ऑफ 3π/2. दिस इज द पोजीशन ऑफ 3π/2. 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो पीछे आएगा. 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो आगे जाएगा. इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो यू मार्क अ फॉरवर्ड एरो. ऐसा एरो मार्क करो फॉरवर्ड. ठीक है, एंड राइट डाउन ओवर हियर दिस इज नथिंग बट 3π/2 प्लस थीटा है. और ऐसा बैकवर्ड एरो मार्क करो एंड राइट डाउन ओवर हियर. जस्ट डार्कन दिस अप जस्ट फॉर योर रेफरेंस. तो दिस इज नथिंग बट ये होता है 3π/2 माइनस थीटा. ओके, अब देखो पूरा ये टेबल हम याद रखेंगे ना तो इसके जो फॉर्मूलेज है याद रखने के लिए एकदम सिंपल हो जाएंगे. इट इज बेटर देन द टेक्सचुअल मेथड. दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क आउट. तो ये π/2 प्लस थीटा है. π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया एंड 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. तो 3π/2 माइनस थीटा means it is third quadrant and 3π/2 plus theta means it is nothing but the fourth quadrant. ये सबके ऊपर formulas generate होने वाले हैं. Now see this is position of 2π. This is position of 2π. अभी 2π minus theta. So you show a backward arrow. ऐसा पीछे वाला arrow बताओ आप. Coming back. So this position is nothing but 2π माइनस थीटा. पीछे आ गया तो 2π माइनस थीटा. आगे जाएगा. इफ इट गोज अहेड ओवर हियर देन इट बिकम्स नथिंग बट 2π प्लस थीटा हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स 2π माइनस थीटा मीन्स इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 2π प्लस थीटा मीन्स इट इज नथिंग बट द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो ऐसा ये 2π वाला पोजीशन है. 2π में से माइनस किया तो पीछे आ गया. 2π में कुछ अगर एंगल ऐड किया तो इट विल गो अहेड. दैट इज हाउ इट वर्क्स. So what you have to remember, π/2 minus theta means first quadrant, π/2 plus theta means second quadrant, pi minus theta means second quadrant, pi plus theta means third quadrant, 3π/2 minus theta means third quadrant, 3π/2 plus theta means it is fourth quadrant, 2π minus theta means fourth quadrant, and 2π plus theta means it is nothing but
फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan theta and cot theta are positive, rest all are negative. Fourth quadrant में only cos theta and sec theta are positive. Okay, चलो please draw this table. There are two more points that we have to remember, but पहले आप इतना draw कर लो, फिर और मैं आपको लिख के दूंगा इसके आगे. Now, along with this coordinate axis, ये जो representation मैंने आपको show किया है, along with this students, we need to remember these 2 points. So with the help of these things, we can easily generate the formulas. एकदम easy हो जाएगा याद रखने के लिए आपको. Okay, observe. What does the first point say? If the angles are pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, then the function changes. Don't worry, I will explain with the help of examples. ये formulas कैसे याद रखने हैं आपको. Okay, if first point says if the angles are pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, any of these angles, then the function changes. Sin changes to cos, cos changes to sin, tan changes to cot, cot changes to tan, sec changes to cosec and cosec changes to sec. तो अपॉन में 2 है, अब कैसे याद रखो, अपॉन में 2 है तो फंक्शन चेंज होता है. कौन सा फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है? साइन कन्वर्ट्स टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, सेक टू कोसेक एंड कोसेक टू सेक. ये कन्वर्जन आप याद रखो. अपॉन में 2 है तो. नाउ अपॉन में 2 कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? तो जो एंगल्स वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, सी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा, 7 पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा. तो अपॉन में 2, upon में 2, so these angles you will find them on y axis. ऐसे angles आपको y axis पे मिलेंगे. अच्छा, one more thing, if the angles are in form of radians, तो ये upon में 2 दिखेगा. अगर degrees में है तो you know pi by 2 means it is nothing but 90 degree, 3 pi by 2 means it is 270 degree. Now 5 pi by 2, so 5 pi by 2 यहाँ पे आएगा, तो 360 plus 90, so this will be nothing but 450 degree. If the angles are in form of degrees, then you cannot see upon 2. तो इसलिए फिर कैसे याद रखो, y axis पे एंगल है. If the angle is on y axis, then the function changes. ये जो एंगल्स है ये y axis वाले हैं, प्लस थीटा एंड माइनस थीटा. तो y axis वाले एंगल्स है तो फंक्शन चेंज होता है. साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में एंड कोसेक सेक में चेंज होता है. देन सेकंड पॉइंट, इफ द एंगल्स आर पाई, 2 पाई, 3 पाई, देन द फंक्शन डज नॉट चेंज. ठीक है. नाउ ये एंगल, these angles pi, 2 pi and 3 pi, they lie on x axis. ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री है. This is pi radian. This is 2 pi radian. Here it will be x axis पे यहाँ पे 3 pi होगा, है ना. You always go on adding 180. 0 को 180 ऐड किया 180, 180 को 180 ऐड किया 360, 360 को 180 ऐड किया, वापस यहाँ पे आ जाओगे आप, है ना. तो इट इज 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा वो. So if the angle is on x axis, then the function does not change. मतलब साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन ही रहेगा, कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन ही रहेगा, टैन फंक्शन है तो टैन फंक्शन ही रहेगा. All the functions are going to remain the same. Now pi radian means it is 180 degree. 2 pi radian means it is 360 degree. 3 pi radian is nothing but 540 degrees. ठीक है, ये लिख लो. And also note down this point also. ये भी लिख लो. Note, as the quadrant changes,
as the quadrant changes, sign of the function also changes. साइन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के बारे में बात कर रहा है. हाँ, ये साइन मतलब ये साइन वाला फंक्शन है, और SIGN मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के बाद. एज द क्वाड्रेंट चेंजेस, साइन ऑफ द फंक्शन ऑल्सो चेंजेस. अब ये सब यूज करके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ अलाइड एंगल फॉर्मूलेज के, एंड दीज फॉर्मूलेज इन द टेक्स्ट बुक आर गिवन इन द टेबुलर फॉर्म. तो अगर ये डायग्राम और ये दो पॉइंट्स अगर आप माइंड में फिक्स कर लोगे ना, तो वो टेबल भी आपको डिफिकल्ट लगेगा. Just observe. Okay, let me take down some examples. Just observe over here. The first one. अभी से for example, I will just take randomly. Pi by 2 का भी 3 pi by 2, pi, 2 pi, everything I'll take, but I'll explain properly. See over here. अभी पहले cos function ले लेते हैं. Cos pi by 2 minus theta equal to. Now I have to write down allied angle formula for this. Now I am telling you the short trick to remember the formulas. अब देखो सबसे पहले क्या देखना है आपको यहाँ पे. Here you observe this angle. It is pi by 2. So now first you see these 2 points. पहले ये 2 points देखने हैं आपको. Pi by 2 upon में 2 है. तो देखो what does the rule says? Upon में 2 है, so the function changes. ऐसा आप लिख लो. These are the rules. ये rules है. These are the rules. 2 rule, first and the second rule. तो अपॉन में 2 है तो फंक्शन चेंज होता है. मैं नहीं बोलता हूँ, रूल बोलता है. ऐसा आप याद रखो. साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन. तो देखो कॉस फंक्शन दिया है, कॉस फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन फंक्शन में. तो जस्ट पे अटेंशन. कॉस फंक्शन चेंजेस टू साइन फंक्शन. तो ये साइन थीटा हो गया. नाउ नॉट येट ओवर, कॉन्सेंट्रेट. Now pi by 2 minus theta. Pi by 2 minus theta मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो pi by 2 minus theta means it is first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन इज पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड में प्लस साइन डालना है. See once again, pi by 2 minus theta is first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन इज पॉजिटिव. तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा. क्या फॉर्मूला बन गया अलाइड एंगल का? cos pi by 2 minus theta is nothing but sin theta. पॉजिटिव साइन थीटा लिखोगे, पॉजिटिव साइन राइट हैंड साइड में नहीं भी डालोगे तो भी अंडरस्टूड है. तो द फॉर्मूला इज cos pi by 2 minus theta is nothing but equal to sin theta होता है. You can check in your textbook also, यही फॉर्मूला दिया है. Now let us see the second one also. जरा मैं आपको 3-4 एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. नाउ लेट अस डू विद कॉस फंक्शन ओनली. अभी आप देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ. माइनस हो गया, अभी प्लस का लिया. तो सबसे पहले क्या देखना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पाई बाय 2 अपॉन में 2 है. तो अपॉन में 2 है तो देन द फंक्शन चेंजेस. कॉस चेंजेस टू साइन, साइन चेंजेस टू कॉस. तो अभी तो कॉस फंक्शन है ना, तो कॉस फंक्शन चेंज हो जाएगा. तो कॉस फंक्शन चेंजेस टू साइन फंक्शन एंड साइन ऑफ थीटा. दिस इज नॉट येट ओवर. अभी क्वाड्रेंट और उसके हिसाब से साइन डालना बाकी है. नाउ सी पाई बाय 2 प्लस थीटा. पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट है. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो माइनस साइन डालने का राइट हैंड साइड पे. सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन फंक्शन एंड कोसेक फंक्शन आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव. जो क्वाड्रेंट है वो इधर है, तो फंक्शन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखने का है. द फंक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज टू बी सीन. और फिर वो साइन यहाँ पे डालने का. दैट इज हाउ इट वर्क. चलो नोट डाउन द फर्स्ट एंड द सेकेंड फॉर्मूला. तो अगर आप नोटबुक में देखोगे तो उसने एक टेबल एक प्रिपेयर करके दिया है साइन कॉस टैन का, एंड देन ही हैज गिवन द फॉर्मूलेज इन दैट मैनर. बेसिक इज साइन कॉस टैन. बाकी के 3 फंक्शंस जो है वो इनके रेसिप्रोकल है.
That's why also in addition and subtraction formulas also, you see addition and subtraction formulas में भी मैंने sin, cos and tan ये तीन ही functions discuss किए हैं. Okay, because the remaining functions are their reciprocals. We have done it in the previous topic, reciprocal identity. चलो अभी ये pi by 2 plus minus हो गया. अभी pi वाला ले लेते हैं, pi minus theta. ये चलो ऐसा करते हैं, पहले अपॉन 2 वाले ले लेते हैं. Okay, now third example, let us do it this way. Now let us take with tan function, tan of 3 pi by 2 minus theta. टेक्स्ट बुक आप सामने रखो, वो जो टेबल फॉर्म दिया है ना, यू कैन कीप द टेक्स्ट बुक एंड यू कैन कंपेयर, वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू सी, अपॉन में 2 है, तो जैसे ही आपको अपॉन में 2 दिखेगा आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा अपॉन में 2 है मतलब फंक्शन चेंज होता है. ठीक है, नाउ tan फंक्शन है तो tan चेंजेस टू cot एंड cot टू tan. ठीक है, तो tan फंक्शन कन्वर्ट होके हो जाएगा cot फंक्शन, थीटा तो आएगा ही. नाउ क्वाड्रेंट इज नेसेसरी, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होता है. सी नोट, एज द क्वाड्रेंट चेंजेस साइन ऑफ द फंक्शन आल्सो चेंजेस. नाउ 3 pi by 2 minus theta means it is nothing but third quadrant. ये देखो 3 pi by 2 minus theta means it is third quadrant, and in third quadrant tan function is positive. थर्ड क्वाड्रेंट में tan function पॉजिटिव होता है. That's it. नेक्स्ट फोर्थ वन हम ले लेते हैं, अभी tan पे ही अप्लाई करते हैं. चलो tan 3 pi by 2 plus theta इक्वल टू, नाउ अपॉन में 2 है तो फंक्शन चेंज होगा, tan फंक्शन गेट्स कन्वर्टेड टू cot फंक्शन, तो cot थीटा हो जाएगा, बट क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन भी चेंज हो जाएगा. 3 pi by 2 plus theta is फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो 3 pi by 2 plus theta is फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा. That's it. That is how formulas are generated. Similarly, we can do with all the remaining functions also. Sec, cosec, cot, sin, cos, सबके साथ ऐसा कर सकते हैं. चलो now upon 2 वाले कुछ random functions ले लेते हैं. Okay. Fifth example, let us do it for, say for example, cosec ले लेते हैं. Cosec 3 pi by 2 plus theta. Let us do it for this. cosec के लिए ले लेते हैं हम. Now upon में 2 है तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि अच्छा फंक्शन चेंज होता है, तो अपॉन में 2 है तो फंक्शन चेंज होता है, कोसेक चेंजेस टू सेक. ठीक है, तो ये कोसेक फंक्शन का, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सेक फंक्शन, सेक ऑफ थीटा. नाउ वी हैव टू सी द क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स. क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 3 pi by 2 plus theta is fourth quadrant. So this 3 pi by 2 plus theta is fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन यहाँ पे डालना है. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो जो साइन है दैट यू हैव टू पुट इट ऑन द राइट हैंड साइड. ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया. सो दे आर ऑल कॉल्ड एज अलाइड एंगल फॉर्मूलेज. अलाइड एंगल फॉर्मूलेज क्या होते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta. ये जो सारे हैं एंगल्स, दे आर ऑल कॉल्ड एज अलाइड एंगल्स. ओके, चलो लिख लो ये फिफ्थ एग्जांपल. और एक ले लेते हैं रैंडमली, यू कैन सजेस्ट मी एनी फंक्शन. कोसेक हो गया, tan हो गया, cos हो गया, sec ले लेते हैं, चाहिए तो cot ले लेते हैं. चलो लेट अस टेक cot. cot फंक्शन cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लेते हैं. 3 पाई बाय 2 वाले 3 हो गए ना, तो पाई बाय 2 वाला एक ले लेते हैं. तो सबसे पहले क्या देखना है स्टूडेंट, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है और यू कैन से इट इज ऑन वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे है एंगल, मतलब फंक्शन चेंज होगा. कॉट चेंजेस टू tan. ये देखो कॉट चेंजेस टू tan, टू साइडेड एरो डाला हुआ है. तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में आएगा tan थीटा. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी द क्वाड्रेंट pi by 2 plus theta
तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। देखो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट फंक्शन इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे डालना है। नाउ इफ यू वांट, प्लीज ओपन अप योर टेक्स्ट बुक एंड check these many formulas first of all, and then we will move on to the next examples if you want. Okay, वैसे ही हम पाई वाले भी एग्जांपल्स करेंगे, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, दे आर ऑल कॉल्ड एज अलाइड एंगल फॉर्मुलेज। नाउ ये जो अलाइड एंगल फॉर्मुलेज का सेक्शन है, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, बट दिस इज गिवन आफ्टर द एक्सरसाइज। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाता है उसके बाद ये अलाइड एंगल फॉर्मुलेज एक्सप्लेन किए हैं, दैट टू इन द टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में है। उससे इजी तो ये है, यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड फॉर्मुलेज अपने आप जनरेट हो जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग द अलाइड एंगल फॉर्मुलेज। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली एक्सरसाइज के पहले देना चाहिए उसने ये एक्सप्लेनेशन, बट ही हैज गिवन आफ्टर द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.1 के लिए जो भी फॉर्मुलेज रिक्वायर्ड है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट एंड देन वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। चलो नोट डाउन दिस, देन विल मूव अहेड। Okay, now we will see the examples of pi minus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta and 2 pi plus theta. So I again number them क्योंकि ये different examples ले रहे हैं हम। Now we are going to use this second rule, ठीक है। तो चलो लिखो first one, अभी हम लिखते हैं cos पे जाते हैं पहले। Let us take cos of pi minus theta. Now see what does the second rule say. If it is pi or 2 pi or 3 pi, then the function does not change. मतलब अगर एंगल x एक्सिस पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के मैं लिख देता हूँ, दिस इज cos थीटा। बट एज द क्वाड्रेंट चेंजेस, जो फंक्शन का साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, वो तो चेंज होगा ना। नाउ सी पाई माइनस थीटा, it is nothing but second quadrant. ये देखो पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन इज नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, दैट cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, एंड दिस इज ऑल्सो एन अलाइड एंगल फॉर्मूला। चलो राइट डाउन। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस टेक अगेन विथ cos ऑफ पाई प्लस थीटा ले लेते हैं। तो अगेन पाई, देखो अपॉन में 2 नहीं है ना, पाई मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो फंक्शन डज नॉट चेंज, तो यू राइट डाउन एज इट इज cos थीटा ओवर हियर। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करना है, तो पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन वापस नेगेटिव होता है, so it is again minus cos theta. Cos of pi minus theta is also minus cos theta, and cos of pi plus theta is again minus cos theta. See, these all formulas, they are very important. Not only कि इससे exercise हम solve कर सकते हैं, but they are all going to be required in 11th standard in many of the topics. कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री में, आगे जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स में ये सारे फॉर्मुलेज हमें लगने वाले हैं। नॉट ओनली इन 11th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू रिक्वायर ऑल दीज फॉर्मुलेज। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री 1 and 2 स्पेशली, सारे फॉर्मुलेज आपको एज इट इज याद रखने हैं। 11th एज वेल एज 12th में हमें ये लगने वाले हैं, and obviously in entrance also they are going to help us. तो बहुत ध्यान से आप ये सब समझने की कोशिश करो। ओके, चलो प्लीज नोट डाउन, देन विल रैंडमली टेक सम एग्जांपल्स। अभी 2 पाई वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, लेट अस टेक एनी फंक्शन आप ले लो। चलो सेक फंक्शन ले लेते हैं, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा ले लेते हैं।
नाउ 2 पाई एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, तो देन द फंक्शन डज नॉट चेंज। तो ये सेक फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड में भी सेक फंक्शन आएगा। एक्स एक्सिस अपॉन में 2 नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ बट एज द क्वाड्रेंट चेंजेस द साइन चेंजेस ना। अभी सबसे पहले देखो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम प्लस साइन डालेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। चाहिए तो आप आपके टेक्स्ट बुक में देख लो, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। चलो फोर्थ वन, लेट अस टेक विथ कोसेक। एक एक फंक्शन ले लेते हैं। कोसेक ऑफ, लेट अस टेक 2 पाई माइनस थीटा। नाउ 2 पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो राइट डाउन कोसेक थीटा ही आएगा राइट हैंड साइड में। बट क्वाड्रेंट क्या है? 2 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन नेगेटिव होता है, तो क्या फॉर्मूला बन गया? कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कोसेक थीटा बन गया। प्लस ले लेते हैं एक फिफ्थ एग्जांपल, लेट अस टेक प्लस एक tan फंक्शन ले लेते हैं। tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, फंक्शन चेंज होगा नहीं तो tan थीटा एज इट इज मिलेगा। 2 पाई प्लस थीटा, तो विच क्वाड्रेंट इज दिस? तो 2 पाई प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan function is positive. In fact, all functions are positive in the first quadrant. Be positive. ये प्लस साइन आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूलेज है, बट क्योंकि हम ये ट्रिक यूज कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेम्बर ऑल्सो। सिक्स्थ वन पाई वाला एक ले लेते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा tan है ना, चलो कॉट ले लेते हैं। कॉट, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा, तो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा पाई है, पाई एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो दिस इज गोइंग टू रिमेन कॉट थीटा। बट पाई माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? तो इट इज नथिंग बट सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट फंक्शन इज नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड पे माइनस साइन आएगा, तो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सो दीज आर द टू रूल्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर। तो ये सब हमारे अलाइड एंगल फॉर्मूलेज है जो जनरेट होते हैं, एंड दिस इज ट्रिक टू रिमेम्बर द अलाइड एंगल फॉर्मूलेज। ठीक है, तो चलो प्लीज यू हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस, जस्ट नोट डाउन दिस। So with this formula students, we stop for today. Next time when we continue, we start with exercise 3.1 के problems है, start करेंगे, and for that you need to revise addition and subtraction formulas which I have given to you, इसके पहले जो दिया वो, and allied angle formulas, ये सब आपको system याद रखना है। ये formulas अपने आप generate हो जाएंगे अगर आप ये चीज याद रख सकते हो तो, and you will have to remember, ये रहेगा simple है, कुछ भी difficult नहीं है इसमें, because it is required for problem solving. Okay, so please keep studying and please watch my YouTube channel. Thank you very much.